السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹنز کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات چین کے نئے سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے قومی اسمبلی اور سینیٹ میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 11 نومبر کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اجلاس میں پارلیمانی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے صدور و وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے قائم مقام وزیر اعلیٰ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر پیغام دیتے ہوئے کہا، علامہ اقبال کے افکار مسلسل متاثر کن اور رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال ایک عظیم صوفی شاعر تھے۔ اس سے قبل علامہ اقبال کی یوم ولادت پر مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور نعمت اللہ خان نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور نعمت اللہ نے مزار اقبال پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ اسلام آباد میں ہونے والے 7 نکاتی کابینہ اجلاس میں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کے نتائج پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں کے ریاست مخالف بیانیے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کا نام بھی لینا نہیں چاہتی۔ گلگت بلتستان کے علاقے گوبس میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ کبھی اس جعلی حکومت کو نہ حکومت سمجھا نہ کوئی درخواست کی ہے۔ اس حکومت کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے ہمارے اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق احمد نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری دی ہے، جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اداروں، قومی وقار اور تشخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مریم نواز اپنا رویہ درست کر لیں تو علی امین گنڈا پور کو ایسے بیان دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ گلگت بلتستان کے عوام خود ان کو صوبہ بدر کریں گے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوم اقبال پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج عہد کریں، جمہوریت کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ پیپلز پارٹی فکر اقبال کی روشنی میں مساوات اور وسیع تر اتفاق و ہم آہنگی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ مسلم لیگی رہنما شہباز شریف کی کمر میں تکلیف بڑھ گئی، جس پر نون لیگ نے اپوزیشن لیڈر کو فوری ڈاکٹر تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب کے اقتدار کا سفر شہباز شریف کی صحت پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ عمران صاحب شہباز شریف کو اذیت دے کر اپوزیشن کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف کو جانتے بوجھتے ہوئے بختربند گاڑی میں لایا گیا، جس سے ان کی کمر میں تکلیف ہوئی۔ سندھ میں کورونا کیسز کی شرح 4% سے بڑھ گئی۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق 4 نومبر کو کورونا کے کیسز کی شرح 4.94% تک جا پہنچی، جو 6 نومبر کو 4.6، 7 کو 4.15 اور 8 نومبر کو 4.10 رہی۔ محکمہ صحت کے مطابق 27 جولائی کو صوبے میں وائرس کی شرح 4.61% ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ اکتوبر کے مہینے میں وائرس کی شرح 1.9% سے 3.1% کے درمیان رہی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کورونا کی صورتحال سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، جس میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافے اور SOPs پر عمل درآمد پر تفصیلی غور کیا گیا۔ NCOC نے مثبت کورونا کیسز کی شرح میں اضافے پر اظہار تشویش کیا۔ صوبائی چیف سیکریٹریز کی حالیہ گائیڈ لائنز کے تناظر میں اقدامات اور چیف سیکریٹریز نے حساس شہروں میں SOPs پر عمل درآمد پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ مشکل مرحلہ آ رہا ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ شہری ماسک کا باقاعدہ استعمال کریں تو بہتری آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کیسز کے باعث مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ مشکل مرحلہ آ رہا ہے، زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو وبا کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے وزراء اور ارکان اسمبلی کو گلگت چھوڑنے کے لیے چیف کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے انتخابی مہم میں وزراء اور ارکان اسمبلی کو گلگت بلتستان سے نکلنے کا حکم دیا تھا، جس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے فیصلے کو سپریم اپیلیٹ کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ترجمان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے مطابق 2 رکنی بینچ نے بلاول بھٹو کی اپیل پر سماعت کی اور چیف کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جو بائیڈن کی کامیابی کے اعلان کے بعد مختلف شہروں میں فاتح امیدوار کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔
हामियों में खवातीन की बड़ी तादाद भी सड़कों पर निकली है और खुशी के मारे लोग नाच रहे हैं। अमरीकी शहरी अपनी अपनी गाड़ियों पर जो बाइडन की तस्वीर उठाकर जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सदर ट्रंप के हामियों के व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरे में पुलिस से झड़पें हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया है। अमरीकी इंतखाबात नताइज के बाद पैदा होने वाली बेयकीनी की सूरत हाल और सदर ट्रंप की जानिब से फतह के दावे और धांधली के इल्जामात के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। लॉस एंजलिस, शुमारी कैरोलिना, पोर्टलैंड, ओरिगेनो में मुतादिद मुकामात पर दर्जनों और कहीं सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन निकले हैं, जबकि मिनीसोटा में 1 दर्जन से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की अहलिया और दामाद ने इन्हें इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की फतह से ट्रंप के करीबी साथियों में तकसीम पैदा हो गई है, जबकि ट्रंप की अहलिया मेलानिया और इनके दामाद और सीनियर मुशीर जैरेड कुशनर ने सदर को इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और वो बज़िद हैं कि इनसे इंतखाबात में जीत छीनी गई है और इलेक्शन में धांधली करके नताइज तब्दील किए गए। आर्मीनिया के साथ नगोर्नो कराबाख तनाज़े पर अज़रबैजान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने अपने खिताब में कहा कि अज़रबैजान की फोर्सेज ने नगोर्नो कराबाख के दूसरे बड़े शहर शूशा को आर्मीनियन अफवाज से आज़ाद कराकर इसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। कहते हैं, इंतहाई फ़ख्र के साथ ये बताना चाहता हूँ कि शूशा शहर आज़ाद करा लिया गया है। सदर के ऐलान के बाद दारुल हुकूमत बाकू में अवाम की बड़ी तादाद जश्न मनाने सड़कों पर निकल आई, जिन्होंने अपनी अफवाज और हुकूमत के हक में नारेबाजी की। रूस के मिलिट्री बेस में सिपाही ने फायरिंग करके अफसरान समेत 3 साथियों को हलाक कर दिया। रूसी फौज वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया वेरोनिस के करीब एयर बेस में पेश आया। रूसी हुकाम के मुताबिक फायरिंग के वाकये में 2 अफसरान और एक कॉन्ट्रैक्ट फौजी हलाक हुआ, जबकि फायरिंग करने वाला फौजी फरार हो गया। फायरिंग के वाकये में एक फौजी जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हुकाम के मुताबिक पुलिस और फौज ने फायरिंग करने वाले फौजी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज बुध को मजलिस शूरा के नए सेशन से खिताब करेंगे। इस मौके पर वो अपने खिताब में मुल्क के दाखिला और खारजा पॉलिसी के अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे। अरकान शूरा ऑनलाइन शाह सलमान का खिताब सुनेंगे। शाह सलमान अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर मुमलिकत का मौक़िफ़ बयान करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के हमरा पाकिस्तान आने वाला वफ़द सियासी और इक़्तिसादी सतह का है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात करेंगे। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक 48 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है और ये इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अलामी के मुताबिक सार्फिन से इजाफी वसूली नवंबर के बिल की मद में ली जाएगी, ताहम फैसले का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए में मजीद बेहतरी। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे कम होकर 158 रुपए 91 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में 1 डॉलर की कीमत 50 पैसे कम होकर 158 रुपए 80 पैसे हो गई है। पाकिस्तान रेलवे ने 10 नवंबर से मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन बहाल करने का ऐलान कर दिया। ये ट्रेन कोरोना वायरस की वबा से बचाव की वजह से 7 माह कबल बंद की गई थी। मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस का पुराना रूट कराची से रोहड़ी था, जिसे अब तब्दील कर दिया गया है। अब ये एक्सप्रेस कोठरी से बरास्ता दादू रोड़ी के दरमियान चलेगी। पाकिस्तान रेलवे का कहना है कि मोहिंजोदड़ो पैसेंजर से अंदरूनी सिंध के मुसाफिरों को बर वक्त सवारी मैसर आएगी। ये ट्रेन कोठरी से सुबह 7 बजे और सक्कर से शाम 6 बजे रवाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से किसानों को वक्त की कमी का सामना है। किसानों को हैप्पी सीडर और मशीनरी सब्सिडीज के साथ दी है। मलिक अमीन असलम का कहना था कि लाहौर के अतराफ स्मोक के तदराक के लिए इकदाम कर रहे हैं। खराब फसलों को जलाने की वजह से स्मोक की सूरत हाल का सामना रहता है। 90% स्मोक के मसाइल भारत की तरफ से हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि 5000 के करीब मशीनें पाकिस्तान आ जाएं। इस मशीनरी के जरिए किसानों का भी फायदा है। नई मशीनरी को पाकिस्तान की तरफ से मुतारिफ करवाएंगे। एक शौक सी मछली ने कहा शाहीन के पिसर से, ताहद नजर फैला दरिया है ये मेरा।
हर लहजा जवां है, ये रवां है, ये दवा है, गर्दिश दौरां का नहीं कोई असर इसकी उम्र पर। ये कह के हुई सुर्खरू इतराई हुई मछली, शाही उठा हंसते हुए साहिल की फजा में। यौम इकबाल की मुनासबत से पाक फ़ज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा ने नया नग़मा शाहीन व माहीन जारी कर दिया है। इस नग़मे के ज़रिए न सिर्फ शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया गया है, बल्कि फ़ज़ाई सरहदों के पासबानों के लिए इकबाल का विजन भी भरपूर तरीके से उजागर किया गया है। नग़मे को मारूफ गुलकारा ज़ेब बंगश ने गाया है। PSL का मेला सजने को तैयार। PSL के खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मुकामी खिलाड़ियों से मोहम्मद आमिर, उमर खान और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों से एलेक्स हेल्स, कैमरॉन टेलफोर्ड और चैडॉक वॉल्टन कराची पहुंच गए और इन्हें बायोसिक्योर एनवायरनमेंट का हिस्सा बना दिया गया है। दीगर मुकामी खिलाड़ी आज रात के आखिर में शामिल होंगे। लाहौर कलंदर के बैंटंग PSL 5 के मैचेस में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने लाहौर में खेले गए मैचेस में जारहाना बैटिंग की बदौलत लाहौर कलंदर को विनिंग ट्रैक पर लाने में अहम किरदार अदा किया। सुमित पटेल के बाद वो दूसरे गैर मुल्की क्रिकेटर हैं जो कराची पहुंचे हैं। दूसरी जानिब शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा भी पाकिस्तान पहुंच गईं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मरियम नवाज ने एक बार फिर से हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं अमेरिका में बदजुबानों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया और अब पाकिस्तान की बारी है। नगर में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है। चौथी मरतबा न सिर्फ गिलगित में बल्कि पाकिस्तान में नून लीग और नवाज का सूरज सुलू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली की गई तो अवाम आपका घेराव करेगी। धांधली का फैसला न मुस्लिम लीग नून मानेगी, न गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मानेगी। महंगाई ने घर उजाड़ दिए, आप कहते हैं घबराना नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि बदजुबानों को अमेरिका में उठाकर बाहर फेंक दिया गया, पाकिस्तान में भी बदजुबानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। सिलेक्टेड रिजेक्टेड हुआ, अब ये जा रहा है और अवाम के इलेक्टेड आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि PP से हमारा मुकाबला है, लेकिन बिलावल पर ज़ाती हमले बर्दाश्त नहीं। इससे कबल गोपिस में जलसे से खिताब करते हुए इनका कहना था कि कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा, ना उससे कोई दरख्वास्त की है। इनके नसीब में आवाम की खिदमत करना नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि गिलगित में चाहे सड़कें हों, कैंसर अस्पताल हो या पुल, ये सब नवाज शरीफ और नून लीग ने बनाया है। गिलगित में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लाखों सयाह आए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी नून लीग ने दिया है। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान को आज जितनी बीमारियां लाहक हैं, चाहे रोटी 30 रुपए की, बिजली गैस की कीमत में इजाफा हो, तमाम मसाइल का एक ही हल है जिसका नाम नवाज शरीफ और नून लीग है। और इमरान खान को बीमारी का नाम देते हुए कहा कि दुनिया में कोविड 2019 में आया, लेकिन पाकिस्तान में 2018 में ये बीमारी आ गई थी जो मास्क पहनने से नहीं जाएगी बल्कि उठाकर बाहर फेंकने से जाएगी। इस बीमारी ने हमें वफाक की इकाइयों, मईशत और इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया। इस हुकूमत का एहतसाब करना है और यौम एहतसाब करीब आ रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके साथी जब मुँह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। मुल्क भर में शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम विलादत आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर होने वाली तमाम तकरीबात को महदूद रखा गया है। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अनथक जिद्दोजहद का अहवाल जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानून दान, सियासतदान, मुस्लिम सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। सर मोहम्मद इकबाल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान शायर, फ़लसफ़ी और सियासतदान थे जिनकी उर्दू और फ़ारसी में शायरी सबसे बड़े लोगों में शुमार होती है। जदीद दौर और बरतानवी हिंद के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का नज़रिया पेश किया जिसने पाकिस्तान के क़याम की तहरीक की। इन्हें आमतौर पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। इंग्लैंड और जर्मनी में तालीम हासिल करने के बाद इकबाल एक कानून मश्क कायम की, लेकिन बुनियादी तौर पर सियासत, माशियात, तारीख, फलसफा और मजहब पर इल्मी काम लिखने पर तवज्जो दी। वो अपने शायरी तख्लीकात के लिए मशहूर हैं, बशमूल इसरार खुदी, रम्ज बेखुदी, बांगे दरा मशहूर हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पूरी दुनिया में लेकिन खास तौर पर हिंदुस्तान में इस्लामी तहजीब की सियासी और रूहानी बहाली का
एक मजबूत हामी थे। इस सिलसिले में उन्होंने मशहूर लेक्चर्स का एक सिलसिला शाया किया। अल्लामा इकबाल ने अपने 1930 के सदारती खिताब में हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक रियासत बनाने की तरगीब दी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर काम किया और वो मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर कौमी शायर तस्लीम किया जाता है। उर्दू और फारसी में शायरी अल्लामा इकबाल की बुनियादी वजह शोहरत है। उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में जीने की एक नई उम्मीद पैदा की। मुसलमानान हिंद के लिए अलग वतन का ख्वाब देखने वाले इकबाल क़याम पाकिस्तान से पहले ही चल बसे। उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 में हुआ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की शिद्दत कम होने के बाद उम्रा अदायगी की बतदरीज बहाली का सिलसिला जारी है, जिसके तहत अब तक मस्जिद हराम की 75% गुंजाइश इस्तेमाल की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर से आए उम्रा ज़ायरीन ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। हरमैन शरीफ के इंतजामी उमूर के मुताबिक कोरोना की वबा पर काबू पाने के बाद 3 मराहिल में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद हराम में हाजिरी दी, जबकि उम्रा सीजन खोलने जाने के बाद 9,20,000 अफराद ने मस्जिद हराम में नमाज अदा की। इनमें 4,08,000 उम्रा ज़ायरीन भी शामिल हैं। इदारे के मुताबिक मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आने वाले नमाज और ज़ायरीन को हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। इस ज़मन में मुतामिरीन की मावनत और इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े कार पर अमल दरामद किया जा रहा है। नमाजियों और मुतामिरीन की आमदोरफ्त पर नजर रखने, इनके तिब्बी मसाइल के हल में मदद करने और मनासिक उम्रा की अदायगी में इनकी रहनुमाई की जा रही है। मायानाज गुलकार और कव्वाल राहत फ़तेह अली खान ने अपने उस्ताद और आलमी शोहरत याफ्ता नुसरत फ़तेह अली खान को बेहतरीन अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। राहत फ़तेह अली खान कव्वालों और क्लासिकी गुलकारों के एक पंजाबी घराने में पैदा हुए। राहत फ़तेह अली खान फर्रुख फ़तेह अली खान के बेटे हैं, फ़तेह अली खान के पोते और नुसरत फ़तेह अली खान के भतीजे हैं। अफसानवी कव्वाली गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने बहुत छोटी उम्र से ही मौसीकी की आराइश का मुजाहरा किया। अक्सर अपने चचा और अपने वालिद के साथ नुसरत फ़तेह अली खान की तरफ से कव्वाली गाने के फन की तरबियत हासिल करते थे। इसी वजह से नुसरत फ़तेह अली खान के पढ़े हुए मुताद्दिद कलामों, गज़लों और गीतों को राहत फ़तेह अली खान अपनी आवाज में पढ़ा और गाया करते हैं, जिसे मद्दाहों ने हमेशा पसंद ही किया है। इस बार भी राहत फ़तेह अली खान ने अपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को बेहतरीन अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हुए इनकी बे इंतहा मकबूल कव्वाली सांसों की माला को गाकर एक बार फिर मद्दाहों को खुश कर दिया। राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि सांसों की माला कव्वाली इनके दिल के बहुत करीब है और वो इस बार इसे फ्यूजन ट्रैक में ला रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि मैं कव्वाली को अपनी आवाज में रिलीज करके उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाज़ेह रहे कि मकबूल कव्वाली सांसों की माला एक सूफी ट्रैक है, जिसे पहली बार 1979 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया था। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से नौ मुंतखब जो बाइडन की फतह पर जश्न मनाया गया और रैलियां भी निकाली गईं। अमेरिका में इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कैसे जश्न मनाया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में जो बाइडन के हक में पाकिस्तानी अमरीकियों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। रैलियों के शुरा की जानिब से बाइडन आ रहा है, तब्दीली ला रहा है के नारे भी लगाए गए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जो बाइडन की फतह का जश्न मनाने वाले पाकिस्तानियों ने लॉन्ग आइलैंड, ब्रुकलिन और न्यू जर्सी में अलग अलग तकरीबात का इनेकाद किया। जश्न में बच्चों और खवातीन समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुतज़म्मीन और शुरा का कहना था कि बाइडन के आने और ट्रंप के जाने में पाकिस्तानी, अमरीकी और मुसलमानों का अहम किरदार है। शुरा का मजीद कहना था कि वो समझते हैं कि जो बाइडन बेहतर सदर साबित होंगे। न्यूयॉर्क के 3 मकामात पर पाकिस्तानी अमरीकी तंजीमों ने जश्न मनाया, जबकि न्यू जर्सी में जो बाइडन की जीत पर कार रैली भी निकाली गई। इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी वाज़ेह होने के बावजूद सदर ट्रंप शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कायल करने के लिए दामाद ने भी मुलाकात की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
امریکی انتخابی نظام کی روایت یہ رہی ہے کہ انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد صدر اگر انتخاب میں بھی حصہ لے رہا ہو تو اسے شکست ہو چکی ہو تو وہ نتائج تسلیم کرنے اور اقتدار کی منتقلی حوالے سے اعلانات کرتا ہے۔ اگرچہ انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان 14 دسمبر کو ہوتا ہے تو نو منتخب صدر جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے۔ گزشتہ 28 برسوں میں ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جو عہدے کے لیے دوسری مرتبہ منتخب نہیں ہو سکے۔ اس سے قبل 1992 سینئر بش جب دوسری مرتبہ منتخب ہونے میں ناکام ہوئے اور انہیں بل کلنٹن سے شکست ہوئی تو انہوں نے نتائج کا اعتراف کر کے مبارکباد بھی دی اور اپنے حریف کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ تاہم اب معاملہ ٹرمپ کا ہے جو اکھڑ پن اور بد مزاجی کے لیے مشہور ہیں۔ پھر انہوں نے انتخاب سے قبل ہی دھاندلی، ووٹوں کی چوری اور نتائج میں رد و بدل کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے تھے۔ صدر ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران ہی یہ اعلان کر چکے تھے کہ شکست کی صورت میں وہ آسانی سے اقتدار منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ ان اعلانات کے باعث امریکی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں سوال بھی گردش میں رہا ہے کہ ٹرمپ نے اگر وائٹ ہاؤس چھوڑنے ہی سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے معاونین اور ان کی ریپبلکن جماعت کے سینئر ارکان کے حوالے سے عالمی میڈیا میں یہ اطلاعات گردش میں ہیں کہ ٹرمپ فی الحال انتخابی نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹرمپ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ پیر سے وہ انتخابی نتائج کے حوالے سے قانونی جنگ شروع کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ریپبلکن پارٹی نے مختلف ریاستوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور ان کی قانونی حیثیت چیلنج کرنے سمیت قانونی چارہ جوئی کے لیے درکار $6 کروڑ جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ٹرمپ کے ایک انتخابی مشیر کے مطابق ابتدائی طور پر وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مارک میڈوز صدر کو اس حوالے سے قائل کر سکتے تھے، تاہم انہیں کورونا وائرس ہونے کے باعث رابطے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر انہیں باوقار انداز میں اقتدار کی منتقلی پر قائل کرنے کے لیے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کے ایک سابق ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا حق ہے کہ انہیں شکست تسلیم کے لیے ہمت جمع کرنے کا وقت دیا جائے۔ کانٹے کے مقابلے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا ہے، اس لیے ملک کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ان نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو مناسب وقت دیا جائے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں کی شادی ایک سمجھوتا ہے اور دونوں وائٹ ہاؤس میں بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ ٹرمپ کی حکومت کے ایک سابق عہدیدار نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے جو ہار کے بعد سابق امریکی صدر کو ایک اور بڑا دھچکا دے گا کہ میلانیا جلد ہی ٹرمپ سے طلاق لے لیں گی۔ ٹرمپ حکومت کی سابق عہدیدار اسٹیفنی ووکوف نے دعویٰ کیا ہے کہ میلانیا شدت سے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کی منتظر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے ساتھ ہی میلانیا طلاق لے لیں گی۔ واضح رہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ غیر متوقع طور پر الیکشن جیت گئے تھے تو ان کی فتح پر میلانیا ٹرمپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ ان کی ایک دوست کا اس بارے میں کہنا تھا کہ میلانیا کو توقع ہی نہیں تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے۔ اس کے بعد میلانیا نے وائٹ ہاؤس منتقل ہونے میں بھی سستی کا مظاہرہ کیا اور 5 ماہ بعد وائٹ ہاؤس منتقل ہوئیں۔ اسٹیفنی نے قبل ازیں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا الگ الگ رہتے ہیں اور ان کی شادی ایک سمجھوتے کے تحت چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ ایک رومانوی کامیڈی فلم بنا رہی ہیں جس کی ہدایت کاری بھارتی ہدایت کار شیکھر کپور کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ کی فلم کا نام واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ ہے، جسے جمائمہ نہ صرف خود پروڈیوس کر رہی ہیں بلکہ فلم کی کہانی بھی انہوں نے خود ہی لکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کی جانب سے پروڈیوس کی جانے والی فلم کی کہانی ایک رومانوی کامیڈی طرز کی ہوگی جس کی شوٹنگ کا آغاز آئندہ ماہ میں کیا جائے گا۔ فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ کی ہدایت کاری بھارتی ہدایت کار شیکھر کپور کریں گے، جنہوں نے معروف بالی ووڈ فلم مسٹر انڈیا کی ہدایت کاری بھی کی تھی۔ دوسری جانب اس فلم کی کاسٹ میں پاکستانی نژاد برطانوی اداکار شاہد لطیف، برطانوی اداکارہ للی جیمز اور ایما تھامسن سمیت دیگر اداکار شامل ہوں گے۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ اس سے قبل متعدد دستاویزی اور فیچر فلمیں بھی پروڈیوس کر چکی ہیں۔ خیال رہے کہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کی فلم کی ریلیز کے حوالے سے کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ کراچی میں 9 مسلم آرزو فاطمہ کی عمر 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے 14 سے 15 سال قرار دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد آرزو فاطمہ کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا فیصلہ دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو آرزو فاطمہ کیس کی سماعت میں درخواست گزار آرزو کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے آرزو سے پھر استفسار کیا، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ آرزو نے بیان دیا کہ نہیں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور شادی کی۔ آرزو کے وکیل نے موقف دیا کہ لڑکی بار بار کہہ چکی ہے اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ آرزو کی عمر کے تعین سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے آرزو کی عمر 14
से 15 साल करार दे दी। वकील ने मौक़िफ़ दिया कि 14 साल की लड़की पसंद की शादी कर सकती है या नहीं। हम इस पॉइंट पर दलाइल देंगे। आरजू की जानिब से नए वकील ने वकालतनामा जमा कराने पर इसरार किया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस केस में पहले से वकील मौजूद है। आरजू की वकील ने मौक़िफ़ दिया कि लड़की बालिग है तो पसंद की शादी कर सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। लड़की ने वाज़ेह कहा है कि उसने मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आरजू की उम्र 14-15 साल है। नादरा दस्तावेजात के मुताबिक आरजू की उम्र 13 साल है। बदिउल नजर में आरजू पसंद की शादी नहीं कर सकती थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं या दारुल अमान। आरजू कमरा अदालत में रो पड़ी और उसने कहा कि मैं शौहर के साथ जाऊंगी वरना मर जाऊंगी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चाइल्ड मैरिज एक्ट की रोशनी में तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कम उम्री की शादी के कानून की रोशनी में कार्रवाई की जाए। अदालत ने आरजू को वापस दारुल अमान मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया आरजू को इन अफराद से मुलाकात की इजाजत दी जाए जिनसे वो खुद मिलना चाहती हैं। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आया सूफिया की मशहूर तरीन बिल्ली तवील अदालत के बाद इस्तांबुल के अस्पताल में इंतकाल कर गई। गवर्नर ने बाकायदा ट्वीट करके इस खबर की तस्दीक कर दी। गवर्नर इस्तांबुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि आया सोफिया की बिल्ली गिल्ली जो 24 सितंबर से 11 के निजी वेटनरी क्लिनिक में ज़ेरे इलाज थी, बदकिस्मती से बुढ़ापे की वजह से चल बसी। उन्होंने गिल्ली की याद में लिखा कि हम आपको कभी फरामोश नहीं करेंगे। याद रहे कि गिल्ली उस वक्त शोहरत की तरफ गामजन हुई जब इन्हें सन 2009 में फिल्माया गया था। गिल्ली के इंतकाल की खबर मिलने पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इनके चाहने वालों ने भरपूर गम और मोहब्बत का इजहार किया और साथ साथ इनकी तस्वीर भी शेयर की। ख्याल रहे कि गिल्ली सितंबर से बीमार थीं और इनको वफात से कबल इन्हें आइसोलेशन में रखा गया था और लोगों से इनकी सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की गई थी। इस्तांबुल की बिल्लियाँ तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं। 2007 में इस्तांबुल की बिल्लियों पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी और अब इनकी वफात की खबर ने सबको अफसरदा कर दिया है। इंग्लिश टीम के कप्तान एवन मॉर्गन ने अपनी अहलिया के हमरा अबू धाबी की मशहूर शेख ज़ैद मस्जिद का दौरा किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट इंस्टाग्राम पर तस्वीर भी लगाई। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इयन मॉर्गन की जानिब से मस्जिद की तस्वीर ट्वीट की गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इयन मॉर्गन रिवायती हल्के नीले रंग के अमाराती लिबास में मलबूस हैं और अहलिया के हमरा खलीजी मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर इनकी अहलिया ने भी रिवायती अमाराती लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। इंग्लिश कप्तान ने दौरे की तस्वीर के साथ समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर लिखा, शेख ज़ैद मस्जिद की खूबसूरत सुबह। दूसरी जानिब मद्दाहों ने इयन मॉर्गन के दौरे मस्जिद को सराहते हुए इन्हें खुश आमदीद कहा, जबकि कई सार्फिन ने इन्हें शेख मॉर्गन के लक़ब से भी नवाजा। वाज़ेह रहे कि इयन मॉर्गन मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली IPL में भी शरीक थे। वो कोलकाता नाइट राइडर की कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे थे। मॉर्गन की कप्तानी में कोलकाता की टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क।